I recently viewed this British web series on Netflix, Behind Her Eyes. It's based on a novel of the same name. The novel was released in 2017 by Sarah Pinborough. That's the name of the author. Now, what about this web series? Ideally, the genre is mentioned as a supernatural psychological thriller, and it's only of season one as of now, and it's pretty much released recently, or 50 minutes, 40 minutes or time frame का एक episode है, and there are approximately 6 episodes in the season itself. It was originally released on 17th February, which is yesterday. What about the series? When you say psychological thriller, it pulls me. I'm attracted to psychological thrillers because it plays with your mind. It really keeps you thinking. क्या है क्या नहीं है. So this is quite an interesting web series. Although मैं इसको थोड़ा सा predictable भी बोलूँगा, but let's talk about non-spoiler part first. And once I finish the non-spoiler part, I will also include the spoiler one, and I will talk about the web series in detail, including the story. So if you would be interested to know about the story and जिसमें हम इसके बारे में बात करेंगे without revealing much information about the web series. So all in all, very crisply, इस web series में ऐसा क्या है? This web series involves four major characters. One is the husband, who is Tom Bateman. Tom Bateman, great actor, and उसके आप एक कोर्ट परस्यूट मूवी है, वो ज़रूर देखिएगा. उसमें उसकी एक्टिंग बहुत औसम है. ही प्लेज द विलन इन दैट मूवी. लियाम नीसन की मूवी है वो, एंड लियाम नीसन मीन्स टिपिकल chase and revenge kind of movie. Lots of action, but more than action, I guess you would love Tom Bateman's performance here in Cold Pursuit. So that's one of the recommendation in a thriller genre, action genre. Now let's talk about this web series. So Tom Bateman is playing the husband here, David. David is playing a psychologist, and David की wife play कर रही हैं ईव ह्यूसन. उनका नाम है इन वेब सीरीज में एडेल or Adele. Sorry if I'm pronouncing the name incorrect. So David and Adele are this primary couple in this web series, और वो अभी recently सेंट्रल लंदन मूव हुए हैं. The husband is a psychologist and the wife is kind of a housewife, but she is pretty wealthy, तो कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है types. But एक चीज़ mention करूँगा, जो Adele है, the wife, she always has this cold vibe, वो हमेशा ऐसा लगता है कि she's up to something. बहुत ही एक expressionless सा चेहरा है. ऐसा ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक कि उनके माइंड में कुछ स्कीमिंग सा चल रहा है, कुछ बहुत ही डीप लेवल की डार्क स्कीमिंग चल रही है उनके माइंड में. ऐसा लगता है उनके फेस को देख के इस पूरे वेब सीरीज में इनिशियली एज वेल. इनके अलावा, इन दो मेजर कैरेक्टर्स के अलावा, एक थर्ड मेजर कैरेक्टर हैं लुई. Louis is played by the actress Simona Brown. Simona Brown is basically hired as the assistant of the actor David, and she is kind of a intern-ish, kind of a half assistant, like partly वो week में 3 दिन के लिए आती हैं. That's scheduled for her. And होता क्या है कि इन तीनों में ये पूरी स्टोरी कैसे इन्वॉल्व होती है. There's a love triangle as well, थोड़ी सी infidelity भी है. That जो डेविड है, the husband, he kind of gets attracted to Louis, his assistant, pretty much in a way that it results into infidelity in every possible way in the marriage. यहाँ तक तब भी it's okay when we talk about the story part. I mean, ठीक है,
लव स्टोरी है, लव ट्रायंगल है, इनफिडिलिटी है. ओके, नाउ लव ट्रायंगल कैसे हुआ? ओके, let me talk about this part, and this is quite crazy. So Louis reciprocates David's responses or advances in a positive way. So obviously that's how they get into this affair. But Adele की भी फ्रेंड बन जाती है लुई. Adele the wife, so उनकी भी फ्रेंड बन जाती है लुई, उनकी जिम पार्टनर बन जाती हैं. सो इवेंचुअली वो एडल के भी क्लोज है, डेविड के भी क्लोज हैं. डेविड के साथ उनका अफेयर है, एंड एडल के साथ शी इज लाइक द बेस्ट फ्रेंड, द ओनली फ्रेंड रादर. यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स और थोड़ा दिमाग से खेलना शुरू हो जाता है कि ओके, ये कैसे, आई मीन हाउ कम लुई इज डूइंग दिस. आई मीन she's like attracted to David. We see that during the infidelity parts, but how come she's friends with Adele? क्या चल रहा है माइंड में? So इस पूरे वेब सीरीज में, I mean in the starting itself, from the first few episodes, you would start questioning that whom to root for, you know, किसका साइड दे, किसका साइड ले, हस्बैंड का, वाइफ का, लुई का. So nobody seems to be like the primary character, you know. तीनों ही like primary character है, equal weightage है तीनों का. But at the same time तीनों के kind of grey shades हैं. तीनों में ही कोई ऐसा नहीं दिखाया कि ओके बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं. तीनों के ही ह्यूमन साइड्स हैं, यू नो, ग्रे शेड्स. सो यू वुड नो कि यार हीरो कौन है, विलेन कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है. तीनों के ही ऐसे मिक्स शेड्स हैं. नाउ एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, एक फोर्थ कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है, रॉब. रॉब was basically ये थोड़ा बैक स्टोरी में दिखाया गया, फ्लैशबैक्स में, बीच बीच में फ्लैशबैक्स आते हैं, बैक स्टोरीज दिखाते हैं टू शो द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ एडेल. ऐसा देखा जाता है कि एडेल एक टाइम पे ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज में भी और बिफोर द कॉलेज डेज शी वाज इनटू रिहैब, काइंड ऑफ ड्रग ओडी मे बी. सो शी वाज इनटू रिहैब, और रिहैब में उनके ये फ्रेंड बनते हैं रॉब. रॉब इज अ मेल, और रॉब के साथ इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है. So how Rob becomes an intrinsic part of these three characters जो मैंने पहले बताया था, and eventually Rob also becomes the fourth major character in the entire story. ये कैसे होता है? That's something interesting to watch here. But like I said, this was the non-spoiler part. जो मैं स्पॉइलर या मूवी एक्सप्लेनेशन की बात करूँगा इसके बाद, उसके पहले मैं एक छोटा सा और एक बात टच करूँगा. थोड़ा सा हॉरर पार्ट भी दिया गया है. हॉरर में ऐसा कोई भूत भूत नहीं है. व्हेन दे शो द सम ऑफ द ड्रीमी सीक्वेंसेस, यू नो, जब वो ड्रीम कर रहे हैं, बेसिकली इट्स नाइटमेयर, नॉट एग्जैक्टली ड्रीम, देयर इज नो स्वीट ड्रीम्स है. सो वो नाइटमेयर की डायरेक्शन या कैमरा वर्क कुछ इस तरह से है दैट इट अपीयर्स टू बी सम सीन्स फ्रॉम अ हॉरर मूवी. सो वो हो सकता है कुछ ऐसा लगे कि बिकॉज ऑफ दोज सीन्स यू माइट वांट टू कॉल दिस वेब सीरीज something around horror. I won't call it horror, but कुछ आर्टिकल्स में, वेब आर्टिकल्स में और कुछ दोस्तों ने इसको हॉरर जॉनरा भी कहा है, बिकॉज आई गेस फॉर द ड्रीमी सीक्वेंस और नाइटमेयर सीक्वेंसेस. नाउ एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहूँगा, अब इसको ईस्टर एग बोलें या kind of a hint बोले. If you have not seen this web series and are planning to watch this one, there are certain scenes, you know, यहाँ पे लाइट का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस है. You know, like when Adele is being shown, थोड़ा सा पर्पलिश सा लाइट है. You know, when Rob is being shown, उनके आसपास थोड़ा सा ब्लूइश सा इफेक्ट है. एंड लुई, उनको एक ग्रीन टोन में रखा गया है. ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एलिमेंट है. ऑब्वियसली बिकॉज नॉन स्पॉइलर तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा. इफ यू वांट टू स्टिक अराउंड एंड नो अबाउट इट, नेक्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में देखिए क्या बात थी इस कलर के बारे में. सो डू गिव इट अ वॉच. अगर आपको यू नो थोड़ी सी सरप्राइज एलिमेंट, ट्विस्ट एंड टर्न्स, माइंड बेंडिंग मूवीज पसंद है तो ये देखिए. आई वुड रियली कॉल इट दी बेस्ट. ऐसा कुछ मास्टरपीस नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स समथिंग जो आपको बांध के रखेगा. यू वुड फाइंड इट एंटरटेनिंग, यू वुड फाइंड इट थ्रिलिंग.
6 एपिसोड्स हैं. देयर आर टाइम्स ऑनेस्टली जब आपको लगेगा कि ये वेब सीरीज बोरिंग सी लग रही है, थोड़ी सी ड्रैग है. आई वुड से दैट अराउंड सेकेंड और थर्ड एपिसोड ऑल्सो इट अपीयर्स टू बी अ बिट स्ट्रेची, ड्रैग, मज़ा नहीं आ रहा. बट आई वुड से थोड़ा सा पेशेंस रख के फोर्थ तक पहुंच जाइए, बिकॉज वहां से मेन ट्विस्ट एंड टर्न्स शुरू होंगे एंड प्लॉट रेवलेशन शुरू होगा, जो मैं नेक्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो बताने वाला हूँ. सो इफ यू गेट बोर्ड ड्यूरिंग सेकेंड और थर्ड वीडियो ऑफ एपिसोड्स ऑफ दिस वेब सीरीज, टू गिव इट अ पुश और फोर्थ तक जाइए. वहाँ पे आई एम श्योर यू विल गेट एक्साइटेड एंड वो रश फील आएगा. यू वुड डेफिनेटली वुड वांट टू एंड or complete the web series, and not leave it hanging. That's all for the non-spoiler part of the review and discussion for this web series Behind Her Eyes. If you want to know about the story more, stick around. Else, take care. Bye bye.